राइट। तो इसके अंदर हमारा जो एक्सरसाइज है मैथ्स के 1.3 नंबर सीक्वेंस एंड पैटर्न्स। ठीक है। और हम हैं पेज नंबर 29 पे। राइट। पेज नंबर हमारी बुक का 29 है, आई थिंक सो। यस, पेज नंबर 20। And the question says that write down the next three terms in each of the following sequence in parts A to L. ठीक है. And write down the term to term rule that explains how to find the next term in each sequence. Okay. So different sequences are given to us. ठीक है. In part A, ये हमें क्या दे रहे हैं? Let me change the color background. Alright. तो हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पे, that is the question number 1. Write down the next three terms in each of the sequence. जो सीक्वेंस दी हुई है बहुत ही आसान तरीन है। पार्ट ए में 1 3 5 7 9। राइट। तो हमारे पास थ्री टर्म्स हमें बतानी है। तो ये 11 13 और 15, तो ये तो बहुत ही आसान है। बट व्हाट इज द टर्म टू टर्म रूल? टर्म टू टर्म रूल, हमारा टर्म टू टर्म रूल क्या होगा यहाँ पे? दैट इज वी हैव टू डिफाइन। तो एवरी टाइम वी हैव टू ऐड टू। राइट, हम हर दफ़ा टू ऐड कर रहे हैं, ऐसा ही है। तो हम अगर 5 से 7 में देखें, देन 7 to 9 में देखें, देन वी हैव टू ऐड टू फ्रॉम 9 to 11, right? So that we can get the three next terms. Okay, so add 2 to the previous terms. Okay, add 2 to the previous term. ठीक है, क्लियर है भाई? ऑल राइट। नाउ व्हाट अबाउट द पार्ट बी? पार्ट बी पर आ जाते हैं हम। Part B is saying 1 2 4 6 8 1 2 4 8. Okay, 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 all right. 1 2 4, then 8. It's not 6, then 16, then 32. So now from here we can understand that each term is being multiplied with 2, right? ऐसा ही है जी, every term is being multiplied with the 2, so we will get 128. So the next three terms are 32, 64 and 128। और इसकी जो हम टर्म टू टर्म रूल बनाएंगे वो क्या होगा हमारा? टर्म टू टर्म रूल, टर्म टू term rule is going to be multiply the previous term, multiply the previous term with 2, right? Or by 2। ठीक है, ठीक है जी। Now what about this part C? Part C is 4 8 12 16 20। So 4 8 12 16 and then next three terms would be 20 24 28। और अगर एक और भी लिखना है तो एक और लिख दो, क्योंकि इसमें बुक में शायद यहाँ तक है, पता नहीं यहाँ तक है, देख लो। ओके, राइट। All right, okay. So now term to term rule is going to be term to term rule। क्या होगा इसका? Add 4, right? Add 4 in each yeah, in previous term, right? Clear? ठीक है। All right. Now, what about this? Mm,
the D1. See, 26, 22, 18, 14. So every time you are subtracting, right? ठीक है, from the previous term. ऐसा ही है. तो हम इसको, in order to save our times, we have to move to the next question. Next part. Our next part is 3, 8, 18, 33, 53, 78. ऐसे ही 53 तक आ रहा है. ठीक है. The next is the part E, right? E वाला हमसे कह रहा है 3, 8, 18, 33, 53, then so on, right? Okay. So how are we going to, find the next three terms? Number one, जरा गौर से देखें कि आपके पास यहाँ और यहाँ का डिफरेंस में कितना डिफरेंस आ रहा है. From 3 to 8, you have 5 difference of 5, right? And over here from 8 to 18 you have difference of 10. Then from 18 to 18 to 33, जी 18 to 33 कितना डिफरेंस होगा? 5 और 5 और देन 15, आई थिंक सो. यस, 15 चेक कर लो, क्रॉस चेक कर लो जरा इसको. Yes. ठीक है. एंड नाउ फ्रॉम 33 टू 53, 3 to 53 में कितना डिफरेंस आ रहा है? नाउ इट्स गोइंग टू बी 20, राइट? अच्छा, लेट्स से वी आर अनएबल टू गेस इट. ठीक है, वी आर अनएबल टू गेस दिस वन. अगर हम ये नहीं बता पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम आगे वाला तो बता सकते हैं ना कि यहाँ पे 20 आ रहा है. ठीक है, जब हमने यहाँ का 20 बताया तो नाउ वी आर एबल टू डिसाइड दिस वन. क्यों? क्योंकि इधर 5 का डिफरेंस आया, फिर इधर भी 5 का आएगा, फिर इधर भी 5 का आएगा. सो दिस इज हाउ वी कैन डिफाइन each term. Now the term to term rule is going to be what? In every previous term we have to increase the difference. ऐसा ही है, हमें हर दफा डिफरेंस को भी इंक्रीज करना है जो कि हम ऐड करने वाले हैं. ठीक है. So we are going to add 15 here. So every time we are adding a difference, but we have to increase a difference of 5 as well. ठीक है. तो हम add 5, 10, then 15, then 20, then so on 25, और फिर हमारा बन जाएगा. ठीक है. तो how are we going to write it? टर्म टू टर्म रूल कैसे बन सकता है इसका? टर्म टू टर्म रूल कैसे बन सकता है भाई इसका? How can we write here? Add 5. ठीक है. Then uh, add 10, add 15, add 20, right? So in order to find the next term, what you are going to do is you will add 25. अब आप 25 ऐड करोगे तो what will you get? 25, 53 plus 25 कितना होता है? 20, 73 and 73, 78 हो जाएगा. सही है. और उसके बाद 78 के बाद यू विल डेफिनेटली ऐड 30. जब आप 30 ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा? 8 और 108 बन जाएगा ये. नाउ फ्रॉम 108 यू हैव टू ऐड 35. तो आपका 35 में क्या लिखेंगे? 11 एंड 5. अच्छा 13 होता है ना, 30 चलेगा. सो इट्स गोइंग टू बी 143. ठीक है, जब आप ऐड कर लेंगे इसमें. ठीक है. सो वी हैव गॉट द थ्री टर्म्स. ठीक है, द नेक्स्ट थ्री टर्म्स बाय इंक्रीजिंग अ डिफरेंस ऑफ 5. ठीक है. सो जनरली वी कैन write a general statement. add add a difference add a difference. ठीक है. add a difference of 5 add a difference of 5 in each previous term
नो 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 नो, हाउ कैन वी मेक ए जनरलाइज टर्म जहाँ पे हम ये कह रहे हो कि हमारा 5 का डिफरेंस बढ़ता जाएगा? यस। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, एंड इंक्रीज्ड डिफरेंस ऑफ 5 starting from 3. Add increased difference of 5 starting from 3. ठीक है, ऐड इंक्रीज्ड डिफरेंस, हर दफा 5 का डिफरेंस ऐड होता जा रहा है। ठीक है, फर्स्ट टाइम वी हैड 5, then we had a difference of 10, then we had a difference of 15, right? अच्छा जी, add 5 to the difference of last two terms. Add 5 to the difference of last two terms. Add 5 to the difference. अच्छा देखें, there is a, if the situation was that we have a same difference, then we can add 5. ठीक है, but we have a second difference same. अगर आप इसका second difference देखें तो that is the same. इनका देखने दरम्यान में 5, इनका 5, इनका 5, इनका भी 5, ठीक है, सबका second difference is same. ठीक है, right? So we have to write in this way, add increased difference of 5 starting from 3. Okay. अगर हमें यहाँ पर, जी बिल्कुल, अगर हमें ना वो करना होता, nth टर्म बतानी होती ना, यहाँ तो हम टर्म टू टर्म रूल बता रहे हैं ना। अगर हमें nth टर्म बतानी होती तो देन वी वी डेफिनेटली कंसिडर सेकेंड डिफरेंस, और फिर हम उसको n स्क्वायर करके लिखते। ओके, ठीक है, दैट इज अ क्वाड्रेटिक सीक्वेंस। राइट, नाउ लेट्स डिस्कस द f1। f वाला देख लेते हैं। 1 2 4 7, ओके, 1 2 4 7 11, right? Now you have to decide the next three terms. ठीक है, तो अब हम कैसे डिसाइड करेंगे? जी, यहाँ से यहाँ तो डिफरेंस 1 है, यहाँ डिफरेंस का 2 है, यहाँ 3 है। देखिए यहाँ पे 1 डिफरेंस है, +1। यहाँ पे हमने कितना ऐड किया, +2। यहाँ हमने कितना ऐड किया, +3। यहाँ हमने कितना ऐड किया होगा, ऑब्वियसली 4। So now in order to get the next term we have to add 5. Okay, so what are we going to get is 16. Now from 16 to we will add 6, and then we will get 22. ठीक है, और 22 के बाद we will be adding 7, so we will be getting 29. Clear? Right. So what will be the term to term rule? Term to term rule will be, uh, again add increased difference of 1, right? starting from 1। अगर आप 1 से स्टार्ट करें और उसके अंदर 1 ही डिफरेंस ऐड करते जाएं, डिफरेंस के अंदर एक नंबर इंक्रीज करते जाएं, तो और उसको ऐड करें। पहले आप डिफरेंस देखें, 1 है, डिफरेंस 1 है, उसके अंदर एक आपने नंबर इंक्रीमेंट किया, दैट मीन्स यू हैव ऐड 1 इन इट इन द डिफरेंस, एंड देन यू हैव एडिड, आपने उसको ऐड कर दिया।
ऐड किया किस चीज को, इंक्रीज डिफरेंस को। इंक्रीज डिफरेंस कितना है, 1 है। ऊपर इंक्रीज डिफरेंस कितना था, 5 था। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है जी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द नेक्स्ट पार्ट इज एफ जी। द पार्ट जी इज 2/3, then 4/6, then 6/9, then 8/12, then 15, और उसके बाद हमारे पास यस 12/18 आ सकता है वैसे तो। मैंने उठा के ना पूरा ही लिख दिया, although it was the answer. All right. So now we have to find out the next three terms. Okay. हमें ये निकालनी है. Then how are we going to find out? So let's start working on it. Um, जी. So if you, acha, we have done this question, a similar type of question in the example as well. Okay, this question was given as an example in the textbook. तो आप देख सकते हैं कि न्यूमरेटर में there is an increment of 2, right? आप न्यूमरेटर में देखें तो there is an increment of 2 and in the denominator, ठीक है, there is an increment of 3. So let's see if it continues. So yes, there is an increment of positive 3. Yes, positive 3 का difference आ रहा है denominator में, और numerator में it's going to be +2, +2, +2 and +2, right? ठीक है. So what are we going to get here? क्या मिलेगा हमें भाई? We will be getting, yes, we'll be getting 12/18, and then again add 2 in 12, so we will be getting 14, और फिर जब 3 ऐड करेंगे तो 21 आएगा, फिर 2 ऐड करेंगे तो 16 आएगा, फिर 3 ऐड करेंगे तो 24 आ जाएगा. ठीक है, होप यू हैव गॉट दिस कॉन्सेप्ट. ठीक है, डन. सो और कोई क्वेश्चन? आई वाला भी आप खुद कर सकते हैं, ठीक है, और जे वाला भी आप करें. ठीक है, चलें जे वाला, लेट लेट मी, आई जे वाला, लेट मी डिस्कस विद यू जे वाला. ओके, जी. It's, is it 2/1 in the book as well? Please write in the chat box. Is it 2/1 in that book? 2/1. ये 2/1 ही है चैट उसमें बुक के अंदर. और फिर इसके बाद है हमारे पास 10/27. 10/27 और फिर 17/64. Then 26/125. 26/125. इसके बाद आ रहा है बस कुछ नहीं. ओके, अब हम्म आ, अच्छा, ये ऊपर वाले का टर्म टू टर्म रूल नहीं लिखा भाई. हमें टर्म टू टर्म रूल तो डिफाइन करना है ना हमें. टर्म टू टर्म रूल. तो आप टर्म टू टर्म रूल किस क्या लिखोगे? इंक्रीज 2 इन न्यूमरेटर and
increase 3 in denominator, right? What about this part J? uh, यहाँ +3 मिल रहा है मुझे, यहाँ +5 मिल रहा है, यहाँ +7 मिल रहा है, राइट? ओके राइट, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आई एम राइटिंग द क्वेश्चन एज वेल, सो यू कैन क्रॉस चेक इट। अच्छा जी, +3 +5 पॉजिटिव, एंड डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी +9, सही है ना? +9 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें कि इट्स गोइंग टू बी, ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी +11, है ना? ऐसा ही, +11 हो जाएगा तो ये 20, ये आ जाएगा 37, ओके। अच्छा, इसका देखते हैं 1 से 8 में क्या हो रहा है, और 8 के बाद एकदम से 27, तो वी कांट से कि इसमें कोई डिफरेंस का कुछ काम हो रहा है यहाँ पे। अगर हम ये देखें, ये क्यूब नंबर्स दिख रहे हैं आपको, 1 का क्यूब है, 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब है, 4 का क्यूब है, देन 5 का क्यूब, है ना? ऐसा ही, राइट? सो वी कैन से दैट इन द डिनोमिनेटर वी आर राइटिंग द क्यूब, राइट? और क्यूब किसका लिख रहे हैं? देखें, ये हम ये कह सकते हैं कि ये n = 1 पोजीशन है। This is going to be n = 2. That means the position number, right? n = 3, और ये फोर्थ पोजीशन हो गई। n = 5 यानी फिफ्थ पोजीशन हो गई। This is going to be your n = 6, the sixth one, right? तो अगर मैं ये आपसे कहूँ कि ये 2 का क्यूब है ना? ये 3 का क्यूब है, right? So let me write it this way so that you will be easily understanding this concept, right? So this is going to be 3. This one's going to be the cube of 4. This is going to be the cube of 5. This is going to be what? Cube of 6. So what should be the answer? Uh, cube of 6 is what? No, the 216. ऐसा ही 216 होता है, 2 का 6 का क्यूब, ओके। अच्छा, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? इंक्रीमेंट हमें करना पड़ेगा 13 का। तो 13 का करोगे तो इट्स गोइंग टू बी 50। और आप यहाँ पे आप किसका क्यूब लगाओगे? 7 का क्यूब लगाओगे, ओके। 7 का क्यूब कितना होता है भाई? 7 का क्यूब कितना होता है? देख लो, 243 तो नहीं होगा, 743, ओ सॉरी, 343, अच्छा 343, ओके। ओके, और 7 का क्यूब आ गया। अब 8 का क्यूब देखें, ये आ गया 7 का क्यूब, सही। और 8 का क्यूब देख लें, इधर भी हमें क्या करना पड़ेगा? 15 ऐड करना पड़ेगा, ओके। 15 ऐड करेंगे हम, 15, +15 हो जाएगा, तो दैट्स गोइंग टू बी द 65। और 8 का क्यूब कितना हो सकता है? 5 2 की पावर, हाँ कितना? यस, जजाकल्ला, 5 × 2, एक्सीलेंट, सही है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि ये जो लास्ट क्वेश्चन था इसमें बड़ा अच्छा मजा आया, जिसमें हमें एक डिफरेंस आउट ऑफ द बॉक्स से थोड़ा सा सोचना पड़ा था, ठीक है। दो इट इज नॉट डिफिकल्ट, इट्स नॉट अ बिग डील, जो कि आसान ही था, ठीक है। तो अ, अच्छा, एल वाला कर लेते हैं, ठीक है। एक एल क्वेश्चन पार्ट भी कर लेते हैं इसका, एंड देन वी विल बी साइनिंग ऑफ, ओके। मजा आया आज ये इन क्वेश्चंस को करने में, आसान भी थे। एक आखिरी के 2 4 क्वेश्चंस बस लॉजिकल थे, इतना कोई लॉजिक्स नहीं है इनके अंदर, ठीक है। Now this one, 1 1 2 3 5 8, I think so. Oh, sorry. ये 2 1 1 2 3, अच्छा 1 + 1, ओके ये, अच्छा ओके, ठीक है। जी बेटा। अब आप सोचें इसके नेक्स्ट टर्म्स क्या होंगे।
जी, इनके नेक्स्ट टर्म क्या हो सकती है? yes, so if you consider this one, right, और this one, तो इन दोनों को ऐड अप करें, या अगर हम ये कहें कि इसको प्रीवियस नंबर देखें तो जीरो हो सकता है, ऐसे ही। तो 0 + 1 इट्स गोइंग टू बी 1, राइट? नाउ द दिस नंबर दिस नंबर दिस वन दिस आपको ये वाला कैसे मिलेगा? ये वाला ऐसा मिला कि आपने हर दफा एक नंबर और प्रीवियस वाले नंबर के साथ करना है, ठीक है? तो अगर आप इन दोनों को ऐड करें तो 1 + 1 यू विल गेट 2, राइट? ठीक है। अब आप फिर दोबारा नेक्स्ट टर्म के लिए क्या करेंगे आप? दिस 1 + 2 यू विल गेट 3। ओके, सो बहुत ज़्यादा अजीब खिचड़ी बन गई है, इसको लेट मी राइट इन अ प्रॉपर वे। जी बेटा, तो अगर हमें देखें 0 + 1 यू गेट दिस वन, ठीक है? फिर जब आप 1 + 1 को कर रहे हैं दैट इज 2 यू गेट हियर, ठीक है? यू गेट दिस नंबर। अब आप 1 + 2 को कर रहे हैं तो यू गेट 3, आपके पास ये 3 नंबर आ गया। जब आप 2 + 3 को करेंगे तो ऑब्वियसली यू विल गेट 5। ओके, तो आपका ये नंबर 5 भी आ गया। अब आप 3 + 5 को करेंगे तो यू विल गेट 8, सही है? तो आपका ये 8 आ गया। अब आप 5 + 8 को करेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट 13, सो यू गेट दिस नंबर। अब आप 8 + 13 को करेंगे, सॉरी, 8 + 13 को करेंगे तो कितना आएगा? 21। यस, 21 ही होता है ना, ठीक है? तो 21 आपका आ गया यहाँ पे। अब 21, 13 + 21 करेंगे आप, क्या आएगा? 13 + 21, 13 + 21। यस, 13 + 21, 4 एंड देन 4, 34। ओके, तो आपका ये 34 आ गया। अब आप 21 + 34 करेंगे, so you will get 5 and 5, 55, okay? So you will finally get this 55, okay? So this is how you have got the three numbers। और इसके बाद इसका टर्म टू टर्म रूल लिखते हैं अब हम जल्दी से। यस, टर्म टू टर्म रूल। add the add the previous two terms to get the next term, okay? चलिए जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।